اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ایران امریکہ کشیدگی کی۔ ایران نے آج صبح عراق میں واقع 2 امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ ایران نے اس حملے میں 80 امریکیوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی انتقامی کارروائی ہے، جبکہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے اس حملے کو امریکہ کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایران کا عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملہ، عراق میں واقع 2 امریکی ٹھکانوں کو بنایا نشانہ، ایران نے بتایا قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا انتقام۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق عراق میں 2 امریکی فضائی اڈوں پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر بغداد میں ڈرون حملے میں ملک کے اعلیٰ کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد انتقامی کارروائی ہے۔ یہ حملے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلا راکٹ حملہ عراق میں امریکی فضائی اڈے الاسد پر کیا گیا، جبکہ اس کے فوری بعد دوسرا حملہ اربل کے امریکی فضائی اڈے پر کیا گیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ عراق میں 2 فضائی اڈوں اربل اور عین الاسد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت اپنے دفاع میں مناسب اقدامات اٹھاتے ہوئے اس فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ہمارے شہریوں اور اعلیٰ حکام کے خلاف بزدلانہ مسلح حملے کیے جاتے تھے۔ ہم کشیدگی یا جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کریں گے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اس حملے کا نام آپریشن سلیمانی رکھا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ حملے جمعے کے روز امریکی حملے میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ ہیں۔ ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان تمام امریکی اتحادیوں کو خبردار کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی دہشت گرد فوج کو اپنے اڈے دیے تھے کہ ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا نقطۂ آغاز کرنے والے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے کیے گئے حملے پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ عراق میں واقع 2 فوجی اڈوں پر ایران سے میزائل داغے گئے، ہلاکتوں اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اب تک سب کچھ بہتر ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور اور مسلح فوج ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے ایران کے حملے کو امریکہ کے منہ پر تماچا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف فوجی کارروائی کافی نہیں ہے۔ این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمیکنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه۔ ایرانی قوم سے اپنے خطاب میں آیت اللہ خامنئی نے جنرل قاسم سلیمانی کو ایران کا بہادر سپوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سلیمانی صرف فوجی نہیں، سیاسی میدان میں بھی جرات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی کو خطرات کا سامنا تھا، لیکن خطرات سے آگاہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی جان کی پرواہ کی۔ سلیمانی کی شہادت نے ایرانی قوم کو دنیا کے غنڈوں کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عراق بھی سعودی عرب کی طرح دودھ دینے والی گائے بن جائے۔ جنرل سلیمانی نے عراق اور شام میں امریکہ کے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سلیمانی کی شہادت نے ہمیں جگا دیا ہے، دنیا ہمارے جاہ و جلال کو دیکھ چکی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن اور اس کے منصوبوں کو پہچانیں۔ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو سیاسی، سائنسی اور دفاعی میدان میں تیار کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ہمارا دشمن امریکہ اور یہودی ریاست ہے اور ہمیں انہیں پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن ہمارے اندر شکوک پیدا کر کے ہماری دفاعی طاقت کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا حقیقی بدلہ اس خطے سے امریکی فورسز کا نکل جانا ہوگا۔ دست سلیمانی عزیز ما را اونها قطع کردن و دست عزیزش رو در کنار جنازش شما در فیلمها و در عکسها دیدید. انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه قطع کنیم و ببریم.
हालांकि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा कोई नया नहीं है, लेकिन ताज़ा सूरत हाल इंतहाई धमाका खेज नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब कर रहे हैं मीडिया से। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। इस हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त राज तौर पर डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे हैं और माना यह जा रहा था कि पहला बयान है ये डोनाल्ड ट्रंप का। That makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again. तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अमेरिका की ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आए हैं मीडिया के सामने और उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि ईरान के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान के इस हमले में अमेरिकी फौजियों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर ईरान के सदर हसन रूहानी के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी हमले के जवाब में कार्रवाई से खित्ते में भरपूर जंग शुरू हो जाएगी। हसन रूहानी के तर्जुमान हसीमुद्दीन आशना ने अपने एक बयान में कहा है कि इराक में अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के जवाब में अगर अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में भरपूर जंग का पेशखैमा साबित होगा। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए इराक में 2 अमरीकी अड्डों पर मुतादिद मिसाइल्स दागे हैं। इससे कबल ईरान में मजहबी अहमियत के हामिल शहर कुम की मस्जिद जुमकरान में ईरानी रिवायत के मुताबिक इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम भी लहराया गया था। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने भी इराक में अमेरिकी तंसीबात पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। आलमी बिरादरी ने खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ईरान अमेरिका तनाज़ा मामले पर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका और ईरान को मशवरा दिया है कि वो कशीदगी खत्म करने की कोशिश करें।
ईरान की जानिब से बुध को इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क ईरान और अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो मजीद किसी कार्रवाई से गुरेज करें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा किसी के मफाद में नहीं है। ये खित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जापान ने हालिया कशीदगी पर दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें करें और सिफारतकारी के जरिए ताल्लुकात में बेहतरी लाएं। 日本政府として関係各国と連携しつつ情報収集を進めるとともに中東地域の在留邦人の安全に万全を期してまいります。また日本政府としてすべての関係者に緊張緩和のための外交努力を尽くすことを求めます。मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक खित्ते के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा तनाव में फौरी तौर पर कमी लाई जाए, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी मशरिक़ वस्ता में हथियारों का इस्तेमाल फौरी तर्क करने पर जोर दिया है। यूनियन ने अमेरिका और ईरान से कहा है कि वह कशीदगी खत्म करे, मुज़ाकरात का सिलसिला फिर से शुरू करें। One thing is clear, the current situation puts at risk the efforts of the past years and also has implications for the important work of the anti-Daesh coalition. The latest rocket attack on air bases in Iraq, used by US and the coalition forces, among them European forces, are yet another example of escalation and increased confrontation. It is in no one's interest to turn up the spiral of violence even further. बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब का कहना है कि इराक में इत्तेहादी अफवाज भी मौजूद हैं, जिनमें बरतानवी फौज भी शामिल है। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को मजीद हमलों से बाज रहने की तंबीह करते हुए कशीदगी कम करने का मशवरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक ने भी मशरिक़ वस्ता में हालात मामूल पर लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी को ईरान ने मिसाइल दागने से कबल मुत्तला किया था। वज़ीर आज़म के तर्जुमान की जानिब से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि यह इत्तला ज़बानी तौर पर दी गई थी और कोई तहरीर इस हवाले से रवाना नहीं की गई। बयान के मुताबिक आदिल अब्दुल महदी को ईरानी हुकूमत ने बताया कि सिर्फ उन मकामात पर हमले किए जाएंगे जहां अमरीकी फौजी मुकीम है। इस पैगाम में मकामात की वजाहत नहीं की गई। ईरानी हमले पर रद्दमल देते हुए इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले की गलती की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। यरूशलेम में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि जारिहत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। במזרח התיכון של היום אין יום שדומה למשנר. הטלטלה האזורית נמשכת, המאבק בין הקיצונים למתונים מוסיף להתנהל במלוא עוזו. ומצד אחד כמובן האסלאם הרדיקלי בהובלת איראן, שמבקשת ללפות חלקים גדולים מן המרחב באמצעות טרור רצחני וללפות אותנו, לחנוק אותנו ולחסל אותנו, כי הם מבינים שהכוח החזק ביותר של תרבות המערב מצוי פה במדינת ישראל. מבינים את זה מצוין. מצד שני המחנה הפרגמטי שמאוים על ידי קנאי האסלאם, מחנה שמבין היטב את משמעות המערכה למען הקיום, למען החיים, למען העתיד. इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में जाँ बहक हुए ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बुध को उनके आबाई शहर किरमान में सुपुर्द खाक किया गया। कासिम सुलेमानी की तदफीन मंगल को ही होनी थी, लेकिन नमाज जनाजा के जुलूस में भगदड़ मच जाने की वजह से तदफीन के अमल को मौखर कर दिया गया था। जनरल कासिम सुलेमानी सुपुर्द खाक। कासिम सुलेमानी को उनके आबाई शहर किरमान में किया गया सुपुर्द खाक। लाखों सोगवारों ने नम आंखों से किया विदा। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को 8 जनवरी को उनके आबाई शहर किरमान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाखों सोगवारों ने नम आंखों से उन्हें विदा किया। जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन 7 जनवरी को ही किरमान में होनी थी, लेकिन तदफीन के जुलूस में लाखों लोगों के अज़दहान की वजह से
भगदड़ मच गई थी, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। इसके बाद तदफीन के अमल को कुछ घंटों के लिए मौखूफ कर दिया गया था। ईरान के मकबूल आम जनरल के विदाई सफर में सोगवारों का हुजूम उमड़ पड़ा था। अपने कौमी हीरो को अलविदा कहने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले कि किरमान की सड़कें अपनी तंग दामनी का शिकवा करने लगी। जगह की किल्लत की वजह से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद कुचले जाने की वजह से मौत की नींद सो गए। इससे कबल 6 जनवरी को तेहरान में भी कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की थी। तेहरान की सड़कों पर सिरों का समुद्र नजर आ रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ईरानी जनरल के जनाजे के मौके पर भी शहर की शाहराहें और गलियां स्याहपोश लोगों से भरी हुई थी, जिन्होंने ईरानी परचम उठा रखे थे और अमेरिका मुखालिफ नारे लगा रहे थे। जनाजे के जुलूस में शरीक अफराद ने कासिम सुलेमानी की तस्वीर उठा रखी थी और वो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अपने महबूब जनरल की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए ईरान के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई आबदीदा हो गए थे। कासिम सुलेमान की नमाज जनाजा के मौके पर आयतुल्लाह अली खामनेई के अलावा मुक्तदियों की बड़ी तादाद भी आबदीदा ही नजर आई। नमाज जनाजा में ईरान के सदर हसन रूहानी, चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी, कुद्स फोर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। इराक के निगरां वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने मुतनब्बे किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हालिया कशीदगी के बायस मुल्क को एक नाजुक सूरत हाल का सामना है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि यह बहरान खुद खित्ते से बड़ा है। इराक के निगरां वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। आदिल अब्दुल मेहदी ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए खबरदार किया कि ये बहरान खुद खित्ते से बड़ा है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि गैर मुल्की फौजियों को मुल्क से बेदखल करने से इराक एक मुमकिना तसादुम से बच जाएगा। उन्होंने इराक में गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी के खात्मे के लिए पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर की गई करारदाद का हवाला देते हुए कहा कि ये कशीदगी से बचने का वाहिद रास्ता है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल मेहदी ने कहा कि अवामी पार्लियामेंट के सामने मेरा शफाफ होना मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है। उन्होंने रियासत और हुकूमत की ताकत में इजाफा और सूरत हाल से निमटने के लिए अवाम के इत्तेहाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा किसी के खिलाफ कोई मुआनिदाना इरादा नहीं है और हमें हर एक के साथ मुस्बत ताल्लुकात की ज़रूरत है। आदिल अब्दुल मेहदी ने ये तस्दीक भी की कि इन्हें अमरीकी कमांड का इराक से फौजियों के इनखला के बारे में एक पैगाम मौसूल हुआ था, लेकिन फिर चंद घंटों के बाद अमरीका की जानिब से कहा गया कि वो पीछे हट गए हैं और पैगाम गलत था। ख्याल रहे कि इस वक्त इराक में 5000 अमरीकी फौजी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ बनाए गए आलमी इत्तेहाद की छतरी तले मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर 3 जनवरी को अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह के रहनुमा अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 5 अफराद की हलाकत के बाद खित्ते में हालात इंतहाई कशीदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ट्रंप ने ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी को शैतान बताया। अमरीकी सदर ने कहा कि हमने ईरानी जनरल को हलाक करके बहुत सारी जानें बचाई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक करके अमेरिका ने बहुत सी जानें बचाई हैं।
अमेरिकी सदर ने कहा कि कासिम सुलेमानी 3 जनवरी को जब बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए, उस वक्त वो एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके बारे में शिकायत कर सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी ड्रोन हमले का भरपूर दिफा करते हुए कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई है। ताहम अमेरिकी सदर सदारती दफ्तर में बातचीत करते हुए ईरान के सकाफती मुकामात को निशाना बनाने की धमकी से पीछे हटते दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा कि मुख्तलिफ कवानीन के मुताबिक अमेरिका को इन सकाफती मुकामात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कि अगर कानून यही है तो मैं कानून की पासदारी करना पसंद करता हूँ। वाज़ेह है कि इससे पहले उन्होंने ऐद किया था कि अगर ईरान इंतकामी हमले करता है तो उन्हें बहुत तेज और सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर की इस धमकी के बाद उन्हें 4 जानिब से तनकीदों का भी सामना करना पड़ा था। अक़वाम मुत्तहिदा और यहाँ तक कि उनके आला मुआवनीन ने भी तस्लीम किया था कि इससे अमेरिका ने जिन बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर दस्तखत किए हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी। दीगर ममालिक इसको जंगी जुर्म करार देते हैं। इराक के बारे में तबसरा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी वक्त फौज वापस बुलाना चाहेंगे, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। अगर इराक से फौज के इनखला का कहा गया तो उस पर पाबंदियां आयद करने के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो ऐसा तब करेंगे जब अमेरिका को इज्जत और एहतराम न दिया गया। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इराक से अमेरिकी फौज का इनखला खुद इराक के लिए सबसे बुरी चीज होगी। ट्रंप का ये बयान एक खत के बाद सामने आया जिस पर अमेरिकी फौज ने इराक से इनखला से मुताल्लिक पैगाम इराकी वज़ीर-ए-आज़म आदिल अब्दुल मेहदी को भेजा था। हालांकि बाद में अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि ये खत गलती से इराक के वज़ीर-ए-आज़म को भेजा गया था। याद रहे कि 5 जनवरी को इराक की पार्लियामान ने अमेरिकी फौज के मुल्क से इनखला से मुताल्लिक एक करारदाद मंजूर की थी। इसके रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ने इराक के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने की धमकी दी थी। इराकी पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर करते हुए तमाम गैर मुल्की बेशमूल अमेरिकी फौजियों को मुल्क से निकल जाने का कहा है। पार्लियामेंट में मंजूर की गई करारदाद में इराकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गैर मुल्की अफवाज को इराकी सरजमीन, फिजा और समुद्री हुदूद को फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अपनी उस दरख्वास्त को वापस ले ले जिसमें इराक ने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज से नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में मदद मांगी थी, क्योंकि अब दौलत इस्लामिया को शिकस्त हो चुकी है। करारदाद में इराक हुकूमत पर मजीद जोर दिया गया कि वो मुल्क में बैरूनी अफवाज की मौजूदगी को खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे और गैर मुल्की फौजियों को इराकी सरजमीन, फिजा और समुद्र को किसी भी सूरत में इस्तेमाल करने से बाज रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अफगान अमन अमल ईरान की वजह से शदीद मुतासिर है, ताहम उन्होंने उन ईरानी कार्रवाइयों की तफसील नहीं बताई जिनसे अफगानिस्तान में क़याम अमन को धचका पहुंचा है। पोम्पियो के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन कायम करने की इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शामिल होने से ईरान हमेशा गुरेज करता रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि वो अमन कोशिशों में शमूलियत की बजाय उनकी अहमियत कम करने में मसरूफ रहा और आलमी सतह पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत भी जारी रखे हुए है। आगे बढ़ेंगे। ईरान में यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। अफराद हलाक हो गए। तेहरान के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला ये बदनसीब तैयारा कुछ ही देर बाद तेहरान के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे ने तेहरान के इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ देर बाद ही तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे के पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तैयारा जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। परवाजों का जायजा लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 तैयारा ईरान के मकामी वक्त के मुताबिक 6:12 पर रवाना हुआ था और महज 8 मिनट के बाद गिर गया।
طیارہ یوکرین کی قومی فضائی کمپنی کا تھا اور تہران سے یوکرین کے دارالحکومت کیو جا رہا تھا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہونے کا خدشہ ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے طیارہ حادثے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وزارت خارجہ نے مہلوکین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سرکاری رپورٹس تیار نہ ہونے تک اس تباہی سے متعلق قیاس آرائیوں یا پھر غیر مصدقہ نظریات کے خلاف متنبع کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں جہاز کے عملے اور مسافرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کی وزیر خارجہ ویدم پریساٹکیو نے کہا ہے کہ طیارے میں 82 ایرانی، 63 کینیڈین، جہاز کے عملے سمیت 11 یوکرینی، سویڈن کے 10، افغانستان کے 4، جبکہ برطانیہ اور جرمنی کے 3 شہری سوار تھے۔ یوکرین کے انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی۔ UIA کے حکام کے مطابق طیارہ 2016 کے وسط میں مینوفیکچر کیا گیا تھا اور جب آخری مرتبہ 6 جنوری کو اس کا معائنہ کیا گیا تو کوئی فنی خرابی اس میں نہیں پائی گئی تھی۔ Самолет 16 года выпуска середины, получен непосредственно с завода в Боинге, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было, проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен, от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было. یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز نے فوری طور پر تہران کے لیے پروازیں بند کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کو جہاز کا ایک بلیک باکس مل گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک